Presented by Renu Yadav, TGT Maths, KB Aligarh. As we shown in the video clip of a game Angry Bird, the path of the birds. Is it straight? Is it curved? Oh, they are in curve. What type of equation they are representing? Yes, they are representing quadratic equation chapter 4 of class 10. Let's take some example from real life. क्या रियल लाइफ में भी ऐसी हमारे पास में कर्व जो है वो पॉसिबल है या सिर्फ वो गेम के लिए ही फोकस की गई है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फाउंटेन है, जब वो आपका ऐसे करके वाटर उसमें से फ्लोज आउट होता है, आप देखिए वो एक पाथ बनाता है. इफ यू ऑब्जर्व दैट द पाथ ऑफ द वाटरफॉल इज लाइक दिस, यू शेप. सेम एज सम ब्रिजेस, उनका जो आपका रोप है, दे आर ऑल्सो लाइक अ यू शेप. बास्केटबॉल, throwing of a basketball, it's not a straight throwing. Some slides in parks, even in animal also. जो dolphin का आपका jumping का curve, just look like that curve. It means yes, of course, there is an existence of curve in real life also. It means they are equally important for us. So let's study about this equation. So in this chapter, we will study about the introduction of quadratic equation and its journal form. Solving quadratic equation by, we have three methods: factorization, completing the square, quadratic formula. Then find out the discriminant of the quadratic equation and the nature of roots. So this video covers all the important questions of this chapter, quadratic equation. So first, let's discuss what a quadratic equation is. The standard form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. Here we have some condition. A, B and C should be constant. Any number, they can be positive, they can be negative, even. Okay? And another important condition is that A cannot be negative. What will happen if A is equal to 0? This number, right? तो उससे होगा क्या? Your equation जो आपके पास रह जाएगी, that will be a linear equation. वो quadratic equation नहीं रहेगी. It means एक necessary condition और है, जो आपकी x की डिग्री है 2, वो टर्म आपके पास में होनी चाहिए. The name quadratic comes from quad, meaning square, because the variable gets square. It is also an equation of degree 2, as we have discussed earlier, कि डिग्री जो है वो इसकी 2 होनी चाहिए. Let's take an example. How you will check whether a equation, whether a कोई expression given है that is quadratic or not. सब ये आपके पास equation है. आप ये नहीं कह सकते हाँ एक यहाँ पे 2 मुझे दिखाई दे गया, ओके फटाफट just write it, this is an quadratic equation. Wait for a while. You have to solve this. आप इसे solve करेंगे. After solution, at last आपके पास जो आता है, that will decide whether the equation is quadratic or not. Find out the term of the variable which has a degree 2. Yes, we have. It means it's a quadratic equation. Next, take another example. Of course, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा 2 डिग्री है, फटाफट लिख दिया quadratic equation है. Wait for a while. Solve these. After solving, आप देखेंगे जो x square है, they will get cancelled out. और आपके पास में जो equation बचेगी, that will be power of the variable जो है वो x की 1 रह जाएगी. We don't have any degree 2 variable here. It means ये आपकी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। Next, we have three methods to finding out the solution of an equation. First one is your factorization method. Consider an equation. We have certain steps in this method. First step is to multiply first and the last value. The first one is x, second one is 6, even -6 उसके साथ होगा, but I am just taking the numbers. मेरे पास नंबर आया 36. In second step, find all the factors of 36. 1 into 36, 2 8 ja, 18 ja, 2 12 ja, 5 4 ja. Here is a clue. If we have negatives 6 6 also, if we have a negative sign at the third place, it means the middle term will get by subtracting the numbers. So after subtraction, what I got 35, 16, 9, 5 and 0. Can you tell me which two number will make 5? Yes, of course, 4 and 9. तो यहाँ से आपको आपकी मिडिल टर्म मिलेगी, ठीक है। Now split the middle term into two terms. Be careful regarding the sign. The 5 is positive. It means यहाँ पे जो साइन होंगे वो डिफरेंट हमने यूज करने हैं। 9 का मैं यहाँ पे प्लस लूंगी क्योंकि ये ग्रेटर है, और 4 का यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जो मिडिल टर्म है आप देखेंगे टू पार्ट्स में आपकी स्प्लिट हो गई है। नेक्स्ट इन्हीं ग्रुपिंग करनी है, फर्स्ट एंड द सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ। देन इसमें से आप कॉमन फाइंड आउट करेंगे, जैसे 3 is common and x is common in the first two terms, take it out, remaining should be in the bracket, same as यहाँ पे आपका common बाहर आ जाए। लेकिन after common you should have to be careful कि these two bracket x minus 2x minus 3, 2x minus 3, that should be same. Then combine, which two terms should be combined? 3x and minus 2, आप इन्हें कंबाइन करके लिखेंगे और जो कॉमन वाली थी वो एज इट इज आ जाएगी। अभी हमारा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, सिर्फ हमने फैक्टराइजेशन की, बट यहाँ पे आपको x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, इट मीन्स आइदर वन ऑफ द शुड बी 0। कौन सा होगा मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैंने उन्हें दोनों को इक्वल की 0 के इक्वल पुट किया है। तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी 2/3 and second value आ जाएगी मेरे पास 3/2. These are the values of x of this equation by using factorization method. Next method is your completing square. For this method, सबसे पहले आपके पास जो expression है वो ऐसे लिखी होनी चाहिए। So for this what we have to do that कि जो ये +8 है मेरे पास, उसके मुझे shift करना है on the right hand side. तो +8 जो है वो हो जाएगा मेरे पास -8। नेक्स्ट, अब माई गोल इज टू मेक आइडेंटिटी a plus b का होल स्क्वायर एंड a minus b का होल स्क्वायर। व्हाट आई हैव टू डू दैट, जो भी मेरे पास में y इन द सेंस जिसकी डिग्री 1 है, हो सकता है यहाँ पे आपको x मिले, z मिले, ठीक है, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, बट डिग्री शुड बी 1। उसका हाफ फाइंड आउट करना है। तो व्हेन यू हाफ ऑफ जो फाइंड आउट करेंगे 6 का, दैट विल बी ऑफ 3। इस 3 का स्क्वायर करेंगे आप और दोनों तरफ टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है, यू हैव टू ऐड द स्क्वायर ऑफ 3 टू द बोथ साइड सो दैट योर इक्वेशन कैन नॉट बी चेंज्ड। 9 आ जाएगा। नाउ यू कैन नोटिस दैट ये वाला जो टर्म है मेरे पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, that will transformed into y plus 3 का whole square, and here we have 1. Now shift square to the other side, तो ये square root में change हो जाएगा आपका। पर for the square root यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो प्लस माइनस है ये दो वैल्यूज आपकी निकलेंगी, वो दोनों वैल्यूज जो आपने फाइंड आउट करनी है। Now shift +4 to the other side, ये आ जाएगा माइनस का 3। Again we have two values here, एक आ जाएगी आपके पास यहाँ पे -3 +1
एंड सेकेंड वन इज योर -3 -1. तो ये दो वैल्यू आपके पास निकलेगी -2 एंड -4. दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर. नाउ what will happen if the coefficient of the x square is not 1? तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको 1 जो है वो करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? Divide the whole equation by the coefficient of x square. Here we have 2, so I am dividing the whole equation by 2. So what I got? X square 3/2 and -3/2. Next step is to यहाँ पे मुझे इसको शिफ्ट करना है. ये टर्म जो है तो वो प्लस की हो जाएगी, माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ठीक है. अब फिर से वही मुझे यहाँ पे इसका हाफ करना है. तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आ जाएगा 3/4. तो स्क्वायर ऑफ 3/4 शुड बी एडेड टू बोथ साइड. सॉल्व इट. स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यू आएगी, एक प्लस की और एक माइनस की. बट आप यहाँ देखेंगे √33 ये सॉल्व नहीं होगा, बट √16 को आप सॉल्व करके लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा आपके पास √33/4. नाउ टेक द टू वैल्यूज, एक आपकी प्लस की और एक माइनस की. नेक्स्ट है मेरे पास में x स्क्वायर plus 4x minus 2 equal to 0. Now my question is that, are you able to find out the roots of this equation by factorization method? It seems to be difficult, right? The roots are not an integer. It means मुझे यहाँ पे अब एक और मेथड की जरूरत है जो हेल्प करेगा अदर देन रूट्स को फाइंड आउट करने में, अदर देन फैक्टराइजेशन मेथड. So which method we are going to use that? The method is named on the Indian mathematician Sridharacharya, and the formula is also known as Sridharacharya formula, which is popularly known as quadratic formula. This quadratic formula is derived from the completing square of a journal equation. जो अभी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का काम किया था, ये फॉर्मूला वहीं से निकला हुआ है. उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं जर्नल फॉर्म में चेंज करूंगी तो मेरा ये फॉर्मूला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से फाइंड आउट हो जाएगा. तो व्हाट्स द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज, लेट्स टेक अ हैव अ लुक ऑन दैट. ये देखिए, तो आफ्टर सॉल्विंग मेरे पास लास्ट में ये आता है. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है वो कुछ ऐसे लिखा जाता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a. यू कैन जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, और यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, मे बी इट्स हेल्प यू. नेगेटिव बॉय जो है वो यहाँ पे -b को रिप्रेजेंट किया है, b फॉर बॉय, was thinking yes and no for plus minus about going a party. At the party he talked to a square boy. ये लीजिए, ये स्क्वायर बॉय से उसने बात करी है, but not. ठीक है, but not यहाँ पे but not में मतलब ये नेगेटिव साइन आ गया. 4 awesome cheeks, 4 awesome का A, cheeks का C, 4AC. It was all over at 2 AM. तो देखिए 2A यहाँ से आपके पास आ रहा है, जस्ट अ स्टोरी. अदरवाइज यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला बाय डायरेक्टली, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a. Let's do some examples on quadratic formula. I have an equation. यहाँ पे मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो a की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1. अब ध्यान दीजिए यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ था, कुछ नहीं, इट मीन्स 1 इज हिडन हियर. तो यू विल राइट 1. देन b की वैल्यू है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो आ जाएगी मेरे पास 8. देन c इज कांस्टेंट टर्म विच इज इंक्लूडिंग साइन,
minus 20. Then write down the formula, substitute the values and find out the answer. So here we have two values of x, minus 10 and 2. Discriminant. Discriminant is an expression with the radical sign. आपने देखा होगा अंडर रूट के फॉर्मूले में हम यहाँ वैल्यू निकाल रहे थे b square minus 4ac. This is called the discriminant, right? So discriminant की कुछ वैल्यूज निकलेंगी हमारे पास. अगर ये पॉजिटिव होगा तो रूट्स जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट वैल्यूज, जस्ट लाइक इन अवर प्रीवियस क्वेश्चन माइनस 10 एंड 2. सॉरी माइनस 10 तो नहीं आएगा, रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग. 2 and 5. Is it minus 10 is not a real? Of course, it's a real value. Okay. b square minus 4ac इक्वल रूट्स आएंगे आपके पास में, दोनों एक जैसे ही होंगे, जैसे 1/2 1/2. थर्ड वन इज योर नेगेटिव. यहाँ पे आपके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. यहाँ पे रियल वैल्यू नॉट रियल सॉल्यूशंस होंगे. इनको इमेजिनरी सॉल्यूशंस भी कहते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरे पास में यहाँ पे एक इक्वेशन है, इसके नेचर फाइंड आउट करना और फिर इसके रूट्स फाइंड आउट करने. तो सबसे पहले फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b and c. Substitute in the formula. So after substitution I got minus 31 which is less than 0. Okay. तो इसका मतलब यहाँ पे रूट्स पॉसिबल ही नहीं है. इफ रूट्स आर नॉट पॉसिबल तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करूंगी. Let's take another example. Here the equation. Find out the value of a, b and c. Substitute in the formula. At last you will got 0. It means root should be real and equal. तो अब आप इसके रूट आउट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ मेथड. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास में. अगर मेरे पास कोई इक्वेशन गिवन है, उसमें एक और वेरिएबल है इंस्टेड ऑफ x, आप उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है. तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में मेंशन है कि रूट्स आर इक्वल, राइट? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स b की वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट आपको ये कह रहा है कि रूट्स जो है वो इक्वल है. इट मींस जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 है. फाइंड आउट सारी वैल्यू जो है आप उसमें पुट कर देंगे. तो आफ्टर पुटिंग मेरे पास ऐसे आएगा, और जब मैं स्क्वायर को शिफ्ट करूंगी तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट 24. प्लस माइनस जरूर लगाना है बिकॉज यहाँ पे दो वैल्यूज आपकी निकलनी है. पर 24 को हम यहाँ पे ऐसे ही नहीं लीव कर देंगे. 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी. हियर इज माय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसकी वो प्रोडक्ट लिख ली है नंबर्स के. 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 जो है वो आउटसाइड हो जाएगा, बट 3 and 2 के कोई पेयर नहीं, इसलिए वो रूट के अंदर ही रहेंगे. तो वी हैव 2 वैल्यूज प्लस 2 root 6 and minus 2 root 6. So thank you. This is all about the questions on quadratic equation.